نام خوف کی علامت بن گیا. مختلف ہسٹورینز اسے انڈین نیرو کے نام سے یاد کرتے ہیں. ایک ایسا حکمران جو اتنا بے رحم تھا کہ جیت کے لمحوں میں بھی کبھی نہیں ہنسا. انیشل فائنڈنگز کے مطابق یہ مونومنٹس شاید اس دور کے ہیں جب یہ علاقہ ابھی مسلم حکومت میں نہیں آیا تھا، اور نہ ہی یہ بدھسٹ ہے اور نہ ہی یہ ہندو. گول نام شاید میرا کلا کے نام سے نکلا ہو، خاص طور پر گلا جو اس وقت رولر واریر کا مطلب رکھتا تھا. ان پتھر کے گھڑ سوار سٹیچوز کا سب سے حیران کن پہلو ان کی ایک جیسی شکلیں ہیں. ہر سوار کا چہرہ بالکل ایک جیسا ہے، جیسے یہ کسی کلیکٹیو یا جماعتی فوج کے سپاہی ہوں. یہ ہمالیہ میں کھو گئے سوار آج بھی خاموشی سے وہاں کھڑے ہیں، اپنی ادھوری کہانی کے پورے ہونے کا انتظار کرتے ہوئے. یہ کشمیر رپورٹ ہے. آپ سب ناظرین کا خوش آمدید. میں ہوں آپ کی میزبان امیمہ ریشی. ناظرین، کشمیر کے پیر پنچال پہاڑوں میں جہاں بلند چوٹیاں، تیز بہتی ندیاں اور گہری وادیاں ہیں، وہاں ایک عجیب سی آرکیولوجیکل سائٹ موجود ہے، گوڑا گلی یعنی دا ہارسز پاس. رامبن کا یہ دور دراز علاقہ ان کئی پتھر کے گوڑوں کا گھر ہے جن کی نہ تو تاریخ معلوم ہے، نہ گنتی، اور نہ ہی ان پر زیادہ تحقیقات ہوئی ہے. یہ سٹون ہارسز اکثر 2 یا زیادہ سواروں کے ساتھ نظر آتے ہیں، کچھ 2 میٹر سے بھی اونچے ہیں، اور یہ کشمیر کے ایک تاریخی ڈارک پیریڈ کی جھلک دیتی ہیں. ایسے لوگوں کی چھوڑی ہوئی یاد جو شاید طاقتور اور راز بھرے تھے. رامبن سے تقریباً 50 کلومیٹر دور گول میں موجود گوڑا گلی کو ہمیشہ کشمیر کی قدیم مصوری وراثت کا ایک اہم حصہ مانا گیا ہے. اس جیسے پتھر کے نقش و نگار گڑھی نالا نار جو گول میں ہے اور سلدر ریاسی میں بھی ملتے ہیں، مگر ان تک پہنچنا آسان نہیں، پہاڑوں سے گزرنا پڑتا ہے. رامبن اور ریاسی کے علاقوں میں یہ بقایات عام طور پر کل دیوتا کی عبادت سے جڑی ہوئی لگتی ہیں. یہ کہانی 2013 میں شروع ہوئی جب ایک آرکیولوجسٹ نے سری نگر کے شری پرتاپ میوزیم میں 2 عجیب سٹون ہارسز دیکھے جن پر سوار بنے ہوئے تھے. ان کی شکل مختلف تھی اور کسی قسم کا ریسرچ اویلیبل نہیں تھا. یہی کیوروسٹی 2017 میں ایک رشین انڈین آرکیولوجیکل ایکسپیڈیشن تک لے گئی جو ڈاکٹر نٹالیا وی پولوسمیک کی قیادت میں ہوئی، جو رشین اکیڈمی آف سائنسز کی ایک محترم ریسرچر ہیں. اس پروڈکٹ کو گرڈا ہینکل فاؤنڈیشن کا سپورٹ تھا اور یونیورسٹی آف کشمیر کے ریسرچرز جیسے ڈاکٹر محمد اجمل شاہ اور یتو ممتاز احمد بھی حصے میں تھے. گول کے لوگ تو کئی نسل سے ان گوروں کے بارے میں جانتے ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ کئی اسٹیچوز ٹوٹ چکی ہیں اور ان کے ٹکڑے گلیوں، دیواروں یا بینچز میں لگائے گئے ہیں. کچھ تو دریاؤں میں پائے گئے ہیں جہاں لوگ ان پر کپڑے دھوتے ہیں. اکثر لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آتا کہ یہ اصل میں کسی چیز کا حصہ ہے، اور کچھ لوگ تو انہیں پانڈووں کے نشان سمجھتے ہیں. اتنی تاریخی اہمیت کے باوجود یہ راز بھرے مونومنٹس اب تک کسی ٹھیک طرح کی ریسرچ کا حصہ نہیں بن پائے. اس کی وجہ ان کا دور اور مشکل مقام ہے، اور دوسری وجہ ان کا انوکھا سٹائل ہے جو کسی جانے پہچانے کلچر یا ریلیجن سے میل نہیں کھاتا. ان مشکل حالات کے باوجود 2017 کی ایکسپیڈیشن نے نئے دور کی ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے ان مونومنٹس کو ریکارڈ اور ڈسکرائب کرنے کی کوشش کی. ٹریمیٹری کنسلٹنگ سینٹ پیٹرز برگ کی ٹیم جو میکائل اینکوشکن کے انڈر کام کر رہی تھی نے لیکا اسکین اسٹیشن P20 اسکینر سے 3D سرفیس لیزر اسکیننگ کی. یہ ایڈوانس طریقہ پوائنٹ کلاؤڈ جنریٹ کرتا ہے جس میں تمام جیومیٹرک معلومات ہوتی ہیں، اور یہ تاریخ سے جڑے نایاب اور خطرے میں ڈالے گئے سائٹس کو ڈاکیومنٹ کرنے کے لیے بہت ضروری ہے. اسکیننگ 2 جگہ پر ہوئی جہاں اسکلپچرز کے گروپس 1890 میٹر اور 2030 میٹر کی بلندی پر موجود تھے، اور ہر جگہ تقریباً 1 ہیکٹیئر کے ایریا میں پھیلی ہوئی تھی. اس کے علاوہ DJI Phantom 3 ڈرون سے ایریل سروے اور ایک DSLR کیمرہ سروے فوٹوگرافی بھی کی گئی. یہ تمام ڈیٹا سائنٹیفک ریسرچ، ایکسکیویشن پلاننگ اور ایک ورچوئل میوزیم بنانے میں کام آیا جس کے ذریعے یہ ریئر آرٹیفیکٹس پوری دنیا کے لوگ دیکھ سکتے ہیں. انیشل فائنڈنگز کے مطابق یہ مونومنٹس شاید اس دور کے ہیں جب یہ علاقہ ابھی مسلم حکومت میں نہیں آیا تھا، اور نہ ہی یہ بدھسٹ ہے اور نہ ہی یہ ہندو. ریسرچرز کا کہنا ہے کہ یہ ایک نیا کلچرل لیئر ریپرزینٹ کرتا ہے جو شاید ہیپتھلائٹ کانکویسٹ جو 5th سے 7th سینچری سی سے جڑا ہوا ہو سکتا ہے. ہیپتھلیٹس یعنی وائٹ ہنس ایک طاقتور اور راز بھری قوم تھی جن کے اوریجنز اب تک اسکالرز کے درمیان ایک ڈیبیٹ کا سبب ہے.
कुछ उन्हें ईरानियन बोलने वाले यूज़ी की नस्लों से जोड़ते हैं और कुछ उन्हें पुराने मंगोल या हन समझते हैं। तारीखी सोर्सेज ये बताते हैं कि हेप्थलिट्स का इंडिया पर हमला लगभग 470 सी में शुरू हुआ। तोरमाना की लीडरशिप में उन्होंने कमज़ोर पड़ती गुप्ता एम्पायर का फ़ायदा उठाया और उन इलाकों पर कब्ज़ा किया जो पहले कुशान्स के पास थे। तोरमाना का बेटा मिहिर कुला, जो अपनी सख्ती और बुद्धिस्ट्स के खिलाफ जुल्म के लिए मशहूर था, 537 सी तक कश्मीर और पंजाब में हुकूमत करता रहा। कुछ जंगों में हार के बाद मीरा कुला वापस कश्मीर आया और वहाँ हुकूमत की, जहाँ 537 में उसकी मौत हो गई। उसके बाद भी उसकी नस्लें कश्मीर और पंजाब से बहुत से हिस्सों पर 150 साल तक राज करती रहीं। ये भी कहा जाता है कि गूल नाम शायद मीरा कुला के नाम से निकला हो, खास तौर पर गुला जो उस वक्त रूरल वॉरियर का मतलब रखता था। गुप्ता दौर के दौरान पहली बार जब हंस ने हमला किया तो उनका मुकाबला एम्परर स्कंद गुप्ता ने हिम्मत से किया और उनके हमले को रोक दिया। लेकिन कुछ अरसे बाद तुर्माना, जो वाइट हंस का एक ताकतवर हुक्मरान था, पूरी शिद्दत से वापस आया और नॉर्थ वेस्ट से लेकर पंजाब, राजपुताना, मालवा और ख़ास तौर पर कश्मीर और दोब तक अपना कब्ज़ा जमा लिया। तोरमाना के हमले मुख्तसर थे, लेकिन उन्होंने अपने बेटे मिहिर कुला के लिए रास्ता साफ कर दिया, जो हन हुक्मरानों में सबसे ज़्यादा खौफनाक माना जाता था, ताकि वो कश्मीर में अपनी जालिम हुकूमत कायम कर सकें। हालांकि वाइट हंस को आमतौर पर तशद्दुद और तबाही के लिए याद किया जाता था, लेकिन उनका असर सिर्फ यहाँ तक महदूद नहीं रहा। कश्मीर में उन्होंने सिर्फ फतह नहीं की, बल्कि धीरे धीरे ये लोग यहाँ की एलीट क्लास का हिस्सा बन गए और इस इलाके की तारीख और तहजीब पर गहरा असर छोड़ा। जब उन्हें भारत के अंदर से मुख्तलिफ रियासतों के इत्तेहाद ने निकाल दिया, मिहिर कुला ने पनाह लेने के लिए कश्मीर का रुख किया। कश्मीर के राजकुमार ने शायद उसे ख़त्म करने या कमज़ोर बनाने के इरादे से उसे पनाह दे दी, लेकिन मिहिर कुला आम पनाह गुज़ीर नहीं था। दरबारी साजिशों और जालिमाना चालों के ज़रिए उसने अपने मेज़बान को ही हटा दिया और ताज खुद पहन लिया। उसकी हुकूमत कश्मीर में दर्दनाक जुल्मों से भरी हुई थी। मोहब्बत वही जो दिल से हो, इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। दिल से बनी हर चीज पुश्तों तक चलती है, इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है, ताकि आप जो कुछ भी बनाएं दिल से बनाएं। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। राज तरंगिनी आर.एस. पंडित के तर्जुमे के मुताबिक मिहिर कुला ने बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज तबाह किए, भिक्षुकों को कत्ल किया और इंडस रिवर के किनारे कैदियों को फांसी दी। उसका नाम खौफ की अलामत बन गया। मुख्तलिफ हिस्टोरियंस उसे इंडियन नीरो के नाम से याद करते हैं, एक ऐसा हुक्मरान जो इतना बेरहम था कि जीत के लम्हों में भी कभी नहीं हंसा। इसके बावजूद कि उसका दौर कत्लो गारत से भरा था, मिहिर कुला का किरदार हन तारीख में एक पेचीदा बाब है। कुछ रिवायत कहते हैं कि वो शिव भक्त था, जबकि कुछ उसके शुरू में बुद्धिस्ट होने का दावा करते हैं, लेकिन बाद में उसने उस दीन के खिलाफ तकरीबन जंग छेड़ दी। उसके सिक्के जो बैक्ट्रिया, अफगानिस्तान और कश्मीर में मिले हैं, गुप्त स्टाइल में थे, शायद इसलिए कि वो अपनी हुकूमत को हिंदुस्तानी सियासी और सकाफती रिवायत में ढलकर जायज़ बनाना चाहता था। लेकिन कश्मीर में उसकी याद ज़्यादातर खून और बर्बादी की सूरत में ज़िंदा है। मिहिर कुला की मौत 537 ईडी में कश्मीर में हुई। कहते हैं कि उसके छोटे भाई प्रवसेना ने फिर ताज संभाला। उसे श्रीनगर के शहर को बेहतर बनाने और इलाके में कुछ हद तक अमन वापस लाने का क्रेडिट दिया जाता है। हालात तब्दीली की तरफ गए, लेकिन 6th सेंचुरी की आखिर तक हंस को ईरानियंस और उभरते टर्किक खैगनेट के हाथों शिकस्त मिली। फिर भी उनका असर कश्मीर की तारीख में जिंदा रहा। वाइट हंस कातिल बन के आए थे, लेकिन कुछ राजा बनकर यहाँ से बस गए। इस दौर के बारे में जिससे जुड़े हुए कोई आर्कियोलॉजिकल सबूत कश्मीर में नहीं मिलते। सबसे पहली बार
कुछ फ़िज़ाई निशान 2017 में रशियन आर्कियोलॉजिस्ट की एक्सपेडिशन ने गोडा गली से जोड़कर सामने लाए। ये वही गुमशुदा दौर है जिसे गोडा गली के मॉन्यूमेंट से पहचान मिलती है। इन पत्थर के घुड़सवार स्टैचूज़ का सबसे हैरानकुन पहलू उनकी एक जैसी शक्लें हैं। हर सवार का चेहरा बिल्कुल एक जैसा है, जैसे ये किसी कलेक्टिव या जमाती फौज के सिपाही हो। एक अहम एंथ्रोपोलॉजिकल बात यह है कि इन मर्दों के सर के पीछे का हिस्सा नेप सीधे कटा हुआ है। ये एक निशानी है कि उनके सर जानबूझकर डिफॉर्म किए गए थे, जिसे फ्रंटो ऑसिपिटल क्रेनियल डिफॉर्मेशन कहते हैं। ये तरीका पहली सदी के सेंट्रल एशियन नोमैडिक कबीलों में आम था, खासकर हंस के दरमियान। यही निशानी हेप्थैलिट हुक्मरानों के सिक्कों पर भी देखी गई है, जो एक मजीद वाज़ेह लिंक बनाता है। और भी बहुत सिमिलैरिटीज़ हैं जो ये स्टोन हॉर्समैन और हेप्थैलिट सिक्कों पर बने चेहरों के दरमियान मिलती हैं, जैसे उनकी सीधी बड़ी नाखें, हैंडल बार स्टाइल मूछें और बड़े गोल बालियाँ। हैरत की बात यह है कि आज भी जम्मू के रामबन इलाके के कुछ लोगों की शक्लें इन पुराने पत्थर के सवारों से मिलती हैं। ये रिजेम्बलेंस इस बात की तरफ इशारा करती है कि शायद उनका नस्ली ताल्लुक इन लोगों से हो, जैसे कि इस रिसर्च में दावा किया गया है। ये स्टैचूज़ जिन हॉर्सेस को दिखाते हैं, उनकी लगाम और जंजीरें, ब्रिडल्स और रेन्स बड़ी बारीकी से तराशी गई हैं। इनमें गोल चीक पीसेस यानी घोड़ों के गाल के पास लगे टुकड़े और पॉलीपेटालिस यानी कई परखियों वाले फूल, शायद लोटस के नक्श नज़र आते हैं। इसी डिज़ाइन के चीक पीसेस ईस्ट यूरोपियन और सेंट्रल एशियन स्टीप्स के नोमैडिक कबीलों की 5th सेंचुरी की कब्रों पे भी मिले हैं, जो सेंट्रल एशियन असर का एक और सबूत है। सैडल्स या स्टिरप्स की गैर मौजूदगी और एक ही घोड़े पर 2, 3 या 4 सवार बनाए जाना इस बात का सबूत है कि ये स्टैचूज़ हकीकत में सफ़र का मंजर नहीं दिखाती, बल्कि किसी मिथिकल या सिंबॉलिक मकसद के लिए बनाई गई थी। अक्सर माना जाता है कि ये मॉन्यूमेंट्स यादें हैं, यानी मेमोरियल्स, जिनका ज़्यादा गहरा मानवी मतलब था। ये स्टैचूज़ मिकैशियस क्लोरेटिक क्वार्ट्ज़ाइट स्लेट नाम के पत्थर से तराशी गई हैं। ये यहीं के लोकल पत्थर है जो आसानी से काटे जा सकते हैं, और ये वही मटेरियल है जो मशहूर गंधारा आर्ट में भी इस्तेमाल होते हैं। कुछ स्टैचूज़ पर सुर्ख रंग के निशान मिले हैं, जो ये बताते हैं कि ये स्टैचूज़ कभी ब्राइट कलर से रंगी गई होंगी। ये रिवायत दुनिया भर की कदीम स्टोन स्कल्पचर में आम थी। लाल रंग खून की निशानी को इस्तेमाल किया जाता था ताकि जो मॉन्यूमेंट्स हैं, मूर्तियों को दोबारा ज़िंदगी दी जा सके। ये पत्थर के घुड़सवार स्टैचूज़ एक अजीम और बाइज़्ज़त जंगजू कौम को दिखाते हैं, जिनके हाथों में जेवरात से सजाए हुए हथियार हैं। अक्सर सवारों के पास एक छुरी और एक तलवार होती है। इसके अलावा कुछ सवारों के पास छोटी कमानीदार कमान यानी बोज, पनवरों वाली तीर और बड़े 2 कांटे वाले एरोहेड्स भी नज़र आते हैं। स्कैबर्ड यानी जो तलवार का शीत होता है, उसको कंधे के पीछे पहना हुआ दिखाया गया है। ये तरीका पुराने हिंदुस्तानी वॉरियर्स में आम था, जबकि सेंट्रल एशियन जंगजू बेल्ट पर लटकाया करते थे। पीर पंचाल के स्टैचूज़ पर दिखाए गए हथियारों का मिक्स हिंदुस्तानी तहजीब में एक लंबी टाइमलाइन को दिखाता है, जो ये बताता है कि ये जंगजू चाहे जहाँ से भी आए हो, हिंदुस्तान के अंदर काफ़ी हद तक घुल मिल गए थे। सबसे दिलचस्प बात यह है कि कुछ स्टैचूज़ में औरतें भी हैं, जिन्हें इक्वेस्ट्रियंस कहा गया है। ये हमेशा रो के आखिरी हिस्से में होती हैं। इनके लंबे बाल, सिर पे डायडम्स, कानों में टेम्पल पेंडेंट्स होते हैं, लेकिन हथियार नहीं होते। कुछ स्टैचूज़ में औरत के पीछे एक छोटा बच्चा भी दिखाया गया है। इस राज को और गहरा बनाता है वो मंजर जहाँ इन गुरुओं के स्टैचूज़ के पास पहाड़ों की ढलानों पर छोटी छोटी कुंडियाँ यानी बेसिन्स तराशी गई हैं। ये कुंडियाँ शायद पाकीज़ा होने के रिचुअल्स के लिए थी, हिंदू ट्रेडिशन से जुड़ी हुई। कई बेसिन्स के गिर्द दीवारों पर फ्लैगस्टोन्स हैं, जिन पर बेर रोजेट्स बने हैं, जो या तो खिलते हुए कमल के फूल हैं या बुद्धिस्ट धर्मचक्र। ये रिलीजियस सिंबल्स का एक मिला जुला रूप दिखाता है। पीर पंजाल के ये स्टोन हॉर्सेस और सवार पूरे भारत में बेमिसाल हैं। वेस्ट, सेंट्रल और नॉर्थ इंडिया में कई मेमोरियल स्टोन्स मिलती हैं, लेकिन ऐसे घुड़सवार मॉन्यूमेंट्स और कहीं नहीं मिले। इस रिसर्च का ये कहना है कि ये स्टैचूज़ उन कबीलों से जुड़े हो सकते हैं जो हेप्थैलिट्स के साथ आए थे, खासकर राजपूत, गुर्जर और जट।
जम्मू और आसपास के इलाकों में रहने वाले डोगरा लोग भी, जो अब भी जंगजू मिजाज के लिए मशहूर हैं, शायद इन राजपूत एंसेस्टर्स के वारिस हों। ये स्टैटूज़ पर दिखाए गए हिंदू यानी शिव और कुछ अनजान सिंबल्स हेप्थलीट रिवायत के रिलीजियस डाइवर्सिटी से भी मिलते हैं। हालांकि सरकारी कहानी अभी भी इन स्टैचूज़ को महाभारत के पांडवों से जोड़ना चाहती है, जो कि नए रिसर्च के मुताबिक साबित नहीं होता, लेकिन हुकूमत ने साइट और आर्टवर्क्स को बचाने की कोशिश की है। एक इंसाइडर ने बताया कि जम्मू और कश्मीर के टूरिज्म डिपार्टमेंट ने 2022 में इस साइट को तहव्वुज़ देने के लिए 77.81 करोड़ का प्रोजेक्ट शुरू किया, जिसमें अब तक 32.38 करोड़ खर्च किए जा चुके हैं। 2024 से 25 में 21.19 करोड़ खर्च किए गए और 2025 से अब 26 में 25 करोड़ और लगाए जाने का प्लान है। मगर इम्प्लीमेंटेशन एजेंसीज को अभी फॉरेस्ट क्लियरेंस का इंतजार है, जो प्रोजेक्ट के लगभग आधे हिस्सों को मुतासिर करता है। इस तहकीकात का सबसे गहरा और दिल को छू लेने वाला पहलू ये है कि जिन लोगों ने ये शानदार मूर्तें तराशी थी, उनके डिसेंडेंट्स आज भी उस ज़मीन पर रह रहे हैं, बिना जाने कि वो अपने ही बुजुर्गों के पत्थर बनी यादों के बीच जिंदगी गुजार रहे हैं। ये हिमालय में खो गए सवार आज भी खामोशी से वहाँ खड़े हैं, अपनी अधूरी कहानी के पूरे होने का इंतज़ार करते हुए। नाज़रीन, आज की इस कश्मीर रिपोर्ट में इतना ही। बाकी मज़ीद मालूमात के लिए बने रहिए कश्मीर लाइव के साथ।